أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ترجمہ کنزُ عرفان، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کو کفر کہتے ہیں۔ 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ تو جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسا انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں،
आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ बयान किया गया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी हुकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हुकूक ये है कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफसिदात व मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातिनी हुकूक ये है कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारिग करके ज़ाहिर व बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जे हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ नियाज और मुनाजात में महव हो जाए। कुरान मजीद और अहादीस में नमाज के हुकूक की अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फजाइल बयान किए गए और ना पढ़ने वालों की मजम्मत बयान की गई है। चुनांचे सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सूरह मुमिनून आयत नंबर 1 ता 2। बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू खुजू करने वाले हैं। इस सूरत में ईमान वालों के मजीद औसाफ बयान करने के बाद उनका एक वस्फ ये बयान फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। सूरह मुमिनून आयत नंबर 9। तर्जमा, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और उन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। सूरह मुमिनून आयत नंबर 10 ता 11। तर्जमा, यही लोग वारिस है, ये फिरदौस की मीरास पाएंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। नमाज में सुस्ती करने वालों और नमाजें ज़ाय करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। सूरह निसा आयत नंबर 142। तर्जमा, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। और इरशाद फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवाति फसौफ यलक़ौना गय्या इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला स्वालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैआ। सूरह मरियम आयत नंबर 59 ता 60। तर्जमा, तो उनके बाद वो नालायक लोग उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अनकरीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी गए से जा मिलेंगे। मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया फिर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ी कि उनमें ख्यालात ना आने दे तो उसके पीछे पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वजू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जे होकर ये 2 रकातें अदा करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर मुदावमत की तो क़ियामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर, बुरहान और नजात होगी, और जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त ना की तो उसके लिए न नूर है, न बुरहान, न नजात, और वो क़ियामत के दिन कारून, फ़िरऔन, हामान और उबय बिन खल्फ के साथ होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जान बूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का तीसरा वस्फ बयान किया गया कि वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। राह खुदा में खर्च करने से या ज़कात मुराद है, जैसा कई जगहों पर नमाज के साथ ज़कात ही का तज़किरा है। यह इससे मुराद तमाम किस्म के सदक़ात है, जैसे गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, तलबा, उलमा और मसाजिद और मदारिस वगैरह को देना। नीज औलिया इकराम या फौत शुदगान के लिए सारे सबाब के लिए जो खर्च किया जाता है वो भी इसमें दाखिल है कि वो सब सदक़ात नाफिला हैं। आयत में फरमाया गया, जो हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। इससे मालूम हुआ कि राह खुदा में माल खर्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा माल खर्च कर दिया जाए कि खर्च करने के बाद आदमी पछताए, और ना ही खर्च करने में कंजूसी से काम लिया जाए, बल्कि इसमें एतदाल होना चाहिए। इसी चीज की तालीम देते हुए एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उदा मलूमन महसूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 29 तर्जमा। और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रखो और न पूरा खोल दो कि फिर मलामत में हसरत में बैठे रह जाओ। और कामिल ईमान वालों का वस्फ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अंफ़क़ू लम युसरिफू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 67 तर्जमा। और वो लोग के जो खर्च करते हैं तो न हद से बढ़ते हैं और न तंगी करते हैं, और उन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।